develop one's personality. It's not that a medicine that you can take and your personality is developed. What you need is, can you tell anyone of you, personality development बोलने से क्या समझते हो तुम? डिसिप्लिन आना, डिसिप्लिन. हर सिचुएशन में you should adjust according to the situation. Psychologists say that intelligent आदमी कौन है? जो हर परिस्थिति में ऐसा नहीं कि आज पानी नहीं है तो तुम बिना पानी का सब काम को बंद कर दो. नहीं है तो उसको करो, नहीं है तो भी उसी तरीका से जीवन को जियो. Nothing is impossible and don't make your life stagnant. जैसे तुम बोलते हो यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं है, कारामंडी में जो पढ़ना चाहता है वो स्ट्रीट लाइन, विद्यासागर स्ट्रीट लैंड के अंदर में भी he could achieve success. A bad workman blames his tool. नाच न जाने आंगन टेढ़ी. तुम्हारे मन में अगर इच्छा है तुम कुछ भी कर सकते हो कहीं भी रह के. In my example, being a lecturer in Bhubaneswar in an engineering college, I never felt unhappy when I came here. A small town of Orissa which no one knows, but still I could adapt myself and make my own name. मैं जब इस घर में आई थी तब मेरे परिवार वाले मेरे को परिचय देने के लिए शर्माते थे, ये सोच के कि ये अदर कास्ट है, she is from a Bengali family, how she will adjust. They used to feel shy. तब मेरे को बहुत खराब लगता था ये सोच के मैं क्या गलत की हूँ मेरे जीवन में कि मैं लोग मेरे को परिचय देने के लिए शर्मा रहे हैं. Gradually, मैं मन को I never thought, I was never depressed. मैं उसी दिन से ठान ली थी मैं ऐसा दिन मेहनत से करूं कि मेरे नाम से आज घर परिचित. So that determination is your personality. People ask me, जब आप खाना बनाते हो? हाँ, मैं हर काम करती हूँ हर समय. I was a good mother, I am a good wife, I am a good daughter-in-law and a good social worker. And that should be your spirit of development. वही है तुम्हारा personality. घबराना, डिप्रेस होना, हताश होना, जिस टाइप का, ऐसा नहीं कि तुम खाली नोट कमा लिए तो तुम सक्सेसफुल हो. पैसा is not everything in your life. What is important is a good person, a social human being, a humble person in life. नम्रता से ही जीवन घमंड करना कुछ नहीं है, 2 दिन का है. These all things are temporary. What is most important is a good person, a good human being. You don't need anything in life. Others, everything else is a temporary. What is the most important aspect of your life is be a good human being. जहाँ पे दरकार है उसको हेल्प करो, वो उसका पास्ट को भूल जाओ. What he will do or what he is going to do for you. Okay. हर समय अपने आप को be very versatile in life. एक क्वेश्चन है मेरा. Yeah. Why human is called social animal? Because he is living in a society. आज Why human is called a social animal? एक लाइन को डिफाइन किया गया है कि ह्यूमन बीइंग सोशल एनिमल क्यों है. बच्चे लोग को बोलो. उसका हिंदी क्या होगा? मानव एक सामाजिक प्राणी क्यों है? बोलो उसे. एक लाइन में बताओ बेटा. Why we are animals? हमको एनिमल का डेफिनेशन दिया गया है. मनुष्य अपने जीवन में क्रोध करता है और लोभ करता है, माया करता है, उसी के लिए हमें एनिमल. No, we are similar in all aspects except हमारा ह्यूमन में एक ही चीज एक्स्ट्रा है, विवेक.
थिंकिंग, हाँ, हमारा थिंकिंग डेवलप है। जानवर और हमारे में एक ही फर्क है, हमारा सोच, और कुछ फर्क नहीं है। बाकी वो सब करते हैं हम जो जानवर करता है। Chicky will tell why we are not social. नमस्कार करो। What I have studied in class 11 12, in the biology terms, all the living ones except the plant, all are called animals. Animals, correct. And we define human being as social animal because we have a thinking process, or we call it in Hindi that debate. Yeah. In animals, those we see, the tiger, birds, they don't have a debate about the mind, that we have mind thinking process, what is right, what is wrong, we can define or we can know. But the animal don't have that capacity and ability. And we have the ability to think that is correct or that is wrong. And we think socially that the one is wrong or right. So that's why I call it. Social animal. संपर्क ये लोग बोलो, उसका क्वेश्चन भी कुछ दिमाग में आ आप रहा भी है, पूछना चाहते हो पूछ सकते हो, कुछ भी तुम्हारे मन में है Doubt है, तुम्हारे कुछ। ग्रुप में solve करो। एनी लैंग्वेज, हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, कुछ भी पूछो। मनुष्य का सबसे बड़ा परेशानी मनुष्य का सबसे बड़ा परेशानी क्या है? मनुष्य की सबसे बड़ी परेशानी है टेंशन। छोटा सा भी काम होता है और वह टेंशन में आ जाता है, परेशानी उसके जीवन में घर करना प्रारंभ कर देती है। जो विद्यार्थी अपने आप को टेंशन से मुक्त रखता है वही सच्चा विद्यार्थी कहलाने का अधिकारी बन सकता है। Put your next question. How to remove the tension? How can we avoid tension? जीवन को टेंशन मुक्त कैसे कर सकते हैं? जीवन को परेशानी से मुक्त कैसे कर सकते हैं? टेंशन और परेशानी से अपने आप को मुक्त बनाने के लिए सबसे अच्छा प्रयोग है प्रातः काल उठकर आप 5 मिनट के लिए अनुलोम और विलोम का प्रयोग करने के साथ में अपने कुल देवी का स्मरण करना प्रारंभ कर दें। 24 घंटा आप अपने आप ही तनाव मुक्त बनकर अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देंगे। और कोई क्वेश्चन? संयम पूछो, जो मन में पूछो। पांडे जी चिट्ठी So I have a question that I always fear of everything. So why I have that much fear to deal with any situation? डर है महाराज, बहुत ज्यादा, हर चीज से डरती है। डर हमारे जीवन को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। विद्यार्थी होकर यदि वह डरता है वह अपने परीक्षा काल के समय में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। जो विद्यार्थी एक तरह से अपना आत्मविश्वास बढ़ाना प्रारंभ कर देता है, संकल्प बल का जागरण करना प्रारंभ कर देता है, मेमोरी पावर स्ट्रोंग करना प्रारंभ कर देता है, वह विद्यार्थी हर विषय के अंदर 100 में 100 नंबर लाकर अपने जीवन को सही दिशा की ओर गतिशील बनाने में सफलता प्राप्त कर लेता है। उसको उसको हटाएं कैसे, डर को दूर कैसे करें? हम अपने डर को कैसे रिमूव करें अपने लाइफ से? डर को दूर करने का सबसे बड़ा साधन और उपाय है हम प्रातःकाल उठते ही अपने हाथ की मुट्ठी को बंद करके और यह 3 बार उद्घोष करना प्रारंभ कर दे, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। फिर आपके पास में भय है वह कभी भी फटकने का प्रयास नहीं करेगा और आप निर्भय बनकर अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। समझ सकते कि नहीं समझ? हम हमारे जीवन में एक सफल व्यक्ति किसे कह सकते हैं? सफल व्यक्ति वही बन सकता है जो विद्यार्थी
हर बुराई से अच्छाई को चूज करना प्रारंभ कर दे। 100 बुराइयों में भी एक अच्छाई नज़र आने प्रारंभ हो जाए, उस अच्छाई को हस्तगत करना प्रारंभ कर दे, अपने आप ही उसका जीवन है सद्गुणों से परिपूर्ण बनना प्रारंभ हो जाएगा। महाराज जी सादर प्रणाम। मैं बता दूं संगति कैसी होनी चाहिए? संगत जीवन के अंदर सबसे बड़ा विकास का महत्वपूर्ण सूत्र बन सकता है। हमारी संगत का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए हमारी संगत विद्यार्थी काल के समय में जो अनुशासनवान विद्यार्थी है उसके साथ में संगत करनी चाहिए। जो विद्यार्थी पढ़ने में होशियार है उसके साथ में संगत करनी चाहिए। जो विद्यार्थी शराब और मांसाहार से दूर रहता है उस विद्यार्थी के साथ में अपनी मित्र भाव आगे बढ़ाना चाहिए। तब उसका जो एक तरह से संपर्क है, सहचार्य है, विद्यार्थीपन है, अपने आप ही उसको सार्थक होता हुआ नज़र आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए हर विद्यार्थी अपने मन के अंदर यह संकल्प करे, मैं अपनी अच्छी संगति को ही अपने जीवन में प्रश्रय दूंगा, तो उसका जीवन आगे जाकर पूरे देश और विश्व के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाएगा। धन्यवाद। ऋषभ तेरे को पूछना है तो थोड़ी गुस्सा नहीं आता है। जीवन में सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमारे को अपना लक्ष्य है उसका निर्धारण कर लेना चाहिए। मेरे को क्या करना है उस दिशा की ओर जो विद्यार्थी अपनी शक्ति और पुरुषार्थ का नियोजन करना प्रारंभ कर देता है वह व्यक्ति अपने जीवन में 100% सफलता प्राप्त करके ही रहता है। पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन कैसे? पढ़ाई में मन लगाने के लिए कुछ सूत्र है, वो हमारे को हृदयंगम करना ही होगा। जब हम पढ़ाई करने के लिए अपने स्कूल में पहुंच जाते हैं, हमारा ध्यान है वह केवल अध्यापक के ऊपर केंद्रित हो जाना चाहिए। इधर उधर झांकने का, देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अध्यापक किस भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके हाव भाव क्या है, बोलने का सलीका क्या है, इन चीज़ों की ओर हम ध्यान देना प्रारंभ कर देंगे तो हमारा विद्यालय के अंदर आना वह अपने आप ही हमारे को सही दिशा की ओर अग्रसर करने वाला बन जाएगा। हमारी एकाग्रता है वह हमारे जीवन को और ज़्यादा ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाली बन जाएगी। महाराज जी हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र कैसे हो सकते हैं? एकाग्र बनने के लिए हमारे को सबसे पहले हमारे जीवन के अंदर संकल्प शक्ति का जागरण करना होगा। जब हमारी संकल्प शक्ति जागृत हो जाएगी फिर हमारा विल पावर है वह अपने आप ही बढ़ता हुआ नज़र आ जाएगा। जब हमारा विल पावर बढ़ेगा तब संकल्प शक्ति है वह हमारे को एक नई दिशा प्रदान करने वाली बन जाएगी। हमारा विद्यार्थी जीवन सार्थक और सफल ही नहीं बनेगा, आगे जाकर देश के विकास के अंदर भी हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। गुस्सा कम कैसे किया जाए, इसके लिए सर्वोत्तम उपाय है हम 5 मिनट के लिए अनुलोम और विलोम का प्रयोग है यह करना प्रारंभ कर दें। सांस के अंदर गुस्सा क्यों आ रहा है, उसका कारण क्या है, गुस्सा करने से मेरे को
क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इन 3 चीज़ों पर चिंतन करना प्रारंभ कर देगा, गुस्सा अपने आप ही उसके जीवन से पलायन करना प्रारंभ कर देगा। महाराज जी, ये पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और सिर्फ फोन में मन लग रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, इसका कारण है हम स्कूल के अंदर दबाव के कारण आ रहे हैं। माता पिता का दबाव है, तेरे को हर हालत में पढ़ना ही है। उस दबाव के कारण आप स्नेहा मैडम के स्कूल में तो आ जाएंगे, पर आपका मन है वह स्कूल में नहीं रहेगा। वह मन बाहर घूमते हुए विद्यार्थियों के साथ घूमना प्रारंभ कर देगा। इसलिए आप अपनी विद्या के अंदर सफलता प्राप्त करने में असफल बन जाते हैं। महाराज जी, मनुष्य की मनोकामना कभी भी पूर्ण नहीं होती है। सही है क्या गलत? मनुष्य कुछ भी पाने के बाद उसको और पाने की इच्छा होती है, ये चीज़ सही है या गलत? हाँ, जब तक हम जिंदे रहते हैं तब तक हमारा विकास है, यह होते ही रहना चाहिए। विकास का क्रम है, यह कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हम यदि विकास करते रहेंगे तो हमारी बुद्धि है वह सार्थक दिशा की ओर गतिशील बनती रहेगी। इसलिए कभी भी विद्यार्थी को अपने जीवन के अंदर गुरु बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी बनकर जीते रहोगे तो विकास के दरवाजे हैं वो आगे से आगे आपको और ज़्यादा खुलते हुए नज़र आने प्रारंभ हो जाएंगे। आप जिंदगी भर विकास की ओर अग्रसर ही बनते चले जाएंगे। बाबा जी, हम अपने मन को कैसे रोकें? मन को कैसे रोके? जितना आप मन को रोकने का प्रयास करेंगे, यह मन उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ में दौड़ना प्रारंभ कर देगा। जिस दिन हम मन को एकाग्र बनाना प्रारंभ कर देंगे, जहाँ मन जा रहा है उसको जाने देंगे, तो यह मन अपने आप ही एक क्षण के अंदर भटककर आपके पास में आ जाएगा। फिर यह कभी भी दौड़ने का प्रयास नहीं करेगा। इसलिए मन को रोकने का कभी भी प्रयास नहीं करना चाहिए। जितना रोकोगे उतना ज़्यादा दौड़ेगा, जितना ज़्यादा छोड़ोगे वह अपने आप ही स्थिर होना प्रारंभ हो जाएगा। किसी आदमी से ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसको छोड़े कैसे? लगाव होने का जो कारण होता है वो केवल हमारा आकर्षण और मोह होता है। जब तक आकर्षण और मोह होता है तब तक हम उसके पीछे पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देते हैं। जब हमारे को असलियत पता लग जाता है कि यह केवल स्वार्थ के लिए मेरे साथ में संपर्क स्थापित कर रहा है, केवल अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए मेरे धन का पैसे का उपयोग कर रहा है, जिस दिन ये पता लग जाएगा उस दिन अपने आप ही ये जो आदत है ये अपने आप ही छोड़ती हुई नज़र आनी प्रारंभ हो जाएगी। जीवन में असलियत से हमेशा साक्षात्कार करते रहोगे, कभी भी आप उस रास्ते की ओर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को कैसे करके वो प्रेरित करें? अपने आप को हम स्वयं जिस दिन मोटिवेशन करना प्रारंभ कर देंगे, मेरा जीवन क्या है,
मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और आगे जाकर मैं अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाऊंगा। यह 3 सूत्र जो विद्यार्थी अपने जीवन के अंदर अंगीकार करना प्रारंभ कर देता है, वह व्यक्ति स्वयं अपना मोटिवेशन करना प्रारंभ कर देता है, अपने जीवन में सफलता के साथ आगे भी बढ़ना प्रारंभ कर देता है। महाराज जी, हम अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करें? लक्ष्य का निर्धारण करने वाला दूसरा कोई भी व्यक्ति नहीं है। दूसरा व्यक्ति तो हमारे को लक्ष्य से भटकाने वाले ही होते हैं। हमारा भीतर का इमोनेशन पावर जब बढ़ना प्रारंभ होगा तब हमारे को यह प्रेरणा मिलेगी, मैं किस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ूं, मेरा जीवन है वह कैसे सार्थक होगा। तब अपने आप ही भीतर से आवाज़ आएगी, मेरे को अपने इस जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करने के लिए अध्यापक बनना है, नेता बनना है, व्यापारी बनना है या और किसी दिशा में आगे बढ़ना है। हम स्वयं अपना लक्ष्य निर्धारित करके अपने जीवन को सार्थक दिशा प्रदान करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। कंपल्सरी करो, क्वेश्चन पूछने का। महाराज जी, मेरा और एक सवाल है। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे सोसाइटी में, हमारे परिवार में क्या होता है कि हम अगर एक सरकारी नौकरी हम हासिल कर ले तो हम हमारे वंश या कुल जो है उसका नाम रोशन कर सकते। तो मैं जब घर से निकलता हूँ तो कई सारे सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को देखता हूँ, पर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं। कोई पुलिस में है, कोई बैंक में है, कोई रेलवे में है। तो मैं कैसे मतलब अपने लक्ष्य को निर्धारित करूं कि मुझे इस लाइन में जाना है। कि अगर सरकारी नौकरी तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कौन से जॉब करूं जिससे मुझे अच्छा लगे। हमारा लक्ष्य नौकरी प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य है वह जीवन का निर्माण करना होना चाहिए। यदि हमने हमारे जीवन का संस्कारों के साथ निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, शिक्षा के साथ यदि हमारे को सरकारी नौकरी मिलती है या हम स्वयं अपने बलबूते पर कोई नया आविष्कार करते हैं, वह हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हम यह संकल्प करें, हम नौकरी के पीछे नहीं दौड़ेंगे, शिक्षा से अपने जीवन को श्रृंगारित करने का प्रयास करेंगे तो अपने आप ही हमारे को आजीविका के साधन प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। समझ में आया क्या? एजुकेशन जो है खाली नौकरी के लिए मत करो, नॉलेज के लिए करो। नॉलेज के लिए पढ़ाई जो है नॉलेज के लिए करो, खाली डिग्री के लिए नहीं। महाराज जी, मेरा और एक सवाल है कि एक सफल व्यापारी के पास कौन से गुण होने चाहिए? सबसे बेसिक। सफल व्यापारी के लिए सबसे पहला होना चाहिए आत्मविश्वास, दूसरा होना चाहिए संकल्प बल, तीसरा होना चाहिए अनुशासन, चौथा होना चाहिए मैं अपने जीवन में सफल होकर ही रहूँगा। ये जो 4 महत्वपूर्ण सूत्र है जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, वह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सफल व्यापारी बनने में सफलता प्राप्त कर लेता है। जल्दी से जल्दी सीखने के लिए थोड़ा सा हमारे को एक तरह से मंत्र शक्ति का प्रयोग करना प्रारंभ कर देना चाहिए। विद्यार्थी यदि अपने जीवन में विद्या का प्रवेश करवाना चाहता है, उसके लिए एक छोटा सा सरस्वती का मंत्र है। अपनी तर्जनी अंगुली है, इस अंगुली को दोनों आँखों के बीच में जो टिक्की लगाने का स्थान है वहाँ पर लगाकर ओम शब्द का प्रयोग करें। नाक का अग्रभाग है वहाँ पर एम शब्द का प्रयोग करें। कंठ का जो प्रदेश है वहाँ पर नमः शब्द का प्रयोग करें। ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। इस मंत्र से
सरस्वती है वह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और हमारा ज्ञान का क्षेत्र है वह और ज़्यादा प्रकाशवान बनना प्रारंभ हो जाता है। विद्यार्थी इसे उड़िया उड़िया को क्या बोलना चाहते हो? सफल सब स्कोप में है कि जो भी चेक कर चार बच्चे शरीर को काबू में कैसे कर सकते हैं? शरीर को हम काबू में कैसे कर सकते हैं? शरीर को काबू में करने के लिए सबसे अच्छा आलम्बन है हम प्रातः काल 10 मिनट का समय है वह शरीर के लिए लगाना प्रारंभ कर दें। छोटे छोटे आसन हैं, प्राणायाम है, योगा है, ये करना प्रारंभ कर देंगे। हम अपने आप ही अपने शरीर पर कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त कर लेंगे। समझ पाया बेटा? पूछ लिया क्या पूछा है? और पूछ सक्सेस के लिए क्या करेंगे? जो भी है पूछना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा को हो जाता है, अपने आप को लाचार सोचता है। पूछ। खड़े हो बेटा। थोड़ा सा इसका पैर का प्रॉब्लम है महाराज। डरना नहीं, शर्माना नहीं, जो मन में है पूछ। इसको हंसना हंसने दे, कोई टेंशन नहीं है। बैठ के पूछ ले, बैठ के पूछ ले। गुस्सा कैसे कम किया जाए, इसके लिए सबसे अच्छा प्रयोग है अपनी जो जीभ है उस जीभ को ऊपर तालवे पर लगाकर ओम की ध्वनि करना प्रारंभ कर दे। अपने आप ही गुस्से पर कंट्रोल होना प्रारंभ हो जाएगा। समझा बेटा? इसको ऊपर ताली में लगा के ओम बोलो। ये कौन है बता महाराज? नहीं। बता कौन है तो बता, तो बाबा का नाम बता। गोविंदा बाबा गोविंद अग्रवाल का लड़का है, पोता। होता। होता ठीक ठीक ठीक। राजू तो भैया। जो अनेक राजू, चीजें- हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। हाँ, जो कूड़ा को फेंकती, पानी फेंकती है। हाँ 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 हाँ। और ये है हमारा मिट्टा वाला राकेश का लड़का है। राकेश का क्या? हाँ। बहुत अच्छा है। हम हमारे मन को कैसे शांत रखें? मन को शांत रखने के लिए सबसे पहला सूत्र है हम अपने तन को शांत रखने का प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे। तन की एकाग्रता सदनी प्रारंभ होगी, हमारा मन है वह अपने आप ही एकाग्र चित्त बनना प्रारंभ कर देगा। इसलिए मन को साधने से पहले अपने तन को साधना प्रारंभ कर दें। महाराज जी, हम अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सबसे पहला सूत्र है हम अपने जीवन के अंदर इस संकल्प शक्ति को जागृत करने का प्रयास करें। मैं हमेशा ही अच्छा कार्य करूँगा, सच्चा कार्य करूँगा। अपने आप ही हमारा आत्मविश्वास है वह बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। स्नेहा मैडम की यह स्कूल हमारे सभी विद्यार्थियों को और ज़्यादा प्राणवान बनाकर ज्ञान के क्षेत्र में
आगे बढ़ाने वाली बनेगी। स्नेहा मैडम का पुरुषार्थ है वह सभी विद्यार्थियों को आगे जाकर और ज़्यादा पुरस्कृत करने वाला बन जाएगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।